Hi students, how are you? We are come back in class 7th online classes. And dear students, some day ago your syllabus will be revised. Some chapter was removed from your syllabus. Now I tell to you which chapter was removed from your syllabus. First chapter, nutrition in plant, completely removed your syllabus. Dear students, mark these chapter in your notebook and in your textbook. Third chapter, fiber to fabric. It is whole chapter removed from your chapter. And chapter 9, soil. It is also complete deleted from your syllabus. And chapter 16, 17 and 18. 16 a pre-class resources, and chapter 17 forest our lifeline, and chapter 18 west water story. These three chapters also completely removed from your syllabus, and some topic also removed. I tell to you chapter 4. Chapter 4 4.3 laboratory thermometer, it is removed from your syllabus. And chapter 4.5 type of wearing cloth in winter and summer season, it is also removed from your syllabus. And next chapter 6.4 crystallization, it is also removed from your syllabus. So dear students, some chapter, whole chapter removed from your syllabus, and chapter 4 and 6 some topic was removed from your syllabus. So dear students, mark these chapter in your notebook, and these chapter related question cannot be asked your exam related. These chapter related question cannot be asked in your exam, so take mind about it. And dear students, now we start chapter 6. In previous class we learned in the continuous chapter 6 physical and chemical changes. So you previous chapter you learn the physical changes. Physical changes means these type of changes that we noticed from your eye, that changes will be visible, and physical changes are reversible changes. And in such changes now new substance is no new substance is फाउंड. फिजिकल चेंजेज में कोई भी न्यू सब्सटेंसेज नहीं बनता है. और फिजिकल चेंजेज में चेंज इन कलर, चेंज इन साइज. आप बैलून के अंदर आप बैलून के अंदर आप एयर भरते हैं तो साइज चेंज हो जाती है, एंड आफ्टर बैलून के अंदर से एयर बाहर निकलती है तो वापस पहले जैसा हो जाता है. इसमें फिजिकल चेंजेज. आप इस पेपर को पियर करते हैं, फाड़ते हैं, तो इट मीन्स फिजिकल चेंजेज. एंड many other physical changes you learn about in previous classes. And after that you also learn some chemical changes. Chemical changes with rusting in iron. Iron के अंदर rust होती है, it is chemical changes. And in chemical changes new substances formed, नया पदार्थ है वो chemical changes में बनता है. Dear students, you also a demonstration एक practically I tell to you that if copper sulfate का एक solution लेते हैं, we take a copper sulfate solution, और copper sulfate solution के अंदर आप एक blade अंदर डाल देते हैं. copper sulfate solution is blue color solution.
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। और जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक आयरन ब्लेड हम डालते हैं तो दिस सॉल्यूशन कलर चेंज इनटू ग्रीन, ब्लू कलर चेंज इनटू ग्रीन। ग्रीन कलर चेंज मीन्स बिकम ए फेरस सल्फेट। क्या बन गया वो? फेरस सल्फेट बन गया है। तो डियर स्टूडेंट्स आयरन सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट है। डियर स्टूडेंट्स दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस वी कॉल्ड इट केमिकल चेंजेस, मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसके अंदर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट्स मिल्क से क्या बनता है? कर्ड बनता है। कर्ड बनता है मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल, मीन्स पहले जैसा ये वापस है वो नहीं बनता है। तो दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस वी कॉल्ड इट केमिकल चेंजेस। हमें इसे क्या कहते हैं? केमिकल। लकड़ी बर्न करती है ना, वुडन बर्न विथ इन फायर, तो वुडन पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है ना। एस बनती है, एस एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है मेक ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस व्हेन वुडन बर्न इन फायर। जब लकड़ी वुड बर्न इन फायर तो चेंज एस बनती है और एस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। क्या उस एस से वापस उस लकड़ी को बना सकते हैं? नो, कभी नहीं बना सकते। इट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल चेंजेस। कैसा चेंजेज है? इरिवर्सिबल चेंजेज है। यू आल्सो लर्न अबाउट मैग्नीशियम जो रिबन है उसको बर्न के बारे में भी आपने पढ़ा था। तो इट मीन्स दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस वी कॉल्ड इट केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के कुछ अदर उदाहरण बताता हूं मैं आपको। लाइम वाटर के बारे में जो चूने का पानी, हिंदी में कहते हैं चूने का पानी। लाइम वाटर में के अंदर आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालोगे तो लाइम वाटर सी मिल्की कलर हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक न्यू पदार्थ है वो कैल्शियम कार्बोनेट, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर चूने का पानी मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्या डालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं। तो इट्स कलर चेंज्ड, मिल्की कलर्ड, दूधिया रंग का हो जाता है, मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। और दिस सब्सटेंस दिस टाइप्स ऑफ चेंजेस वी कॉल्ड इट केमिकल चेंजेस। क्या कहते हैं हम इसे? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? हीट उत्पन्न होती है, लाइट उत्पन्न होती है एंड चेंजेस इन स्मेल, कुछ स्मेल भी चेंज हो जाती है केमिकल चेंजेस में एंड कलर भी चेंज हो जाता है और उसके अंदर से कुछ गैस भी निकलती है, गैस में भी फॉर्म। दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस वी कॉल्ड इट केमिकल चेंजेस। डियर स्टूडेंट्स another example of chemical changes surrounding to you, आपने कभी एप्पल खाया होगा, एप्पल को आप कट करके रख दो तो आफ्टर सम टाइम एप्पल के अंदर से कुछ वायु के साथ क्रिया करके, एयर के साथ क्रिया करके सम चेंजेस होता है उसके कलर के अंदर। एप्पल के कलर के अंदर कुछ चेंजेस होता है। दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस वी कॉल्ड इट केमिकल चेंजेस। क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं। चेंजेस इन कलर, कलर के अंदर कुछ चेंज होता है और दिस टाइप ऑफ चेंजेस वी कॉल्ड इट केमिकल चेंजेस। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट another example, in previous lesson we discuss about it, it means rusting of iron। rusting of iron में क्या होता है? आयरन होता है वो एयर के साथ में मीन्स ऑक्सीजन एंड वाटर मीन्स मॉइस्चर, दे आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, इन आवर इन्वायरमेंट, नमी के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाता है। आयरन का इन लैटिन वी कॉल्ड इट फेरस। आयरन लोहा को लैटिन में हम फेरस कहते हैं। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर और मेक रस्ट मीन्स जंग का निर्माण करता है और इट्स फॉर्मूला इज Fe2O3।
rust formula is Fe2O3 और its name is ferrous oxide means iron ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट इज इन आयरन ऑक्साइड के अंदर होता है ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, एंड सेकंड रिक्वायर होता है मॉइस्चराइजेशन, ये मीन्स वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर वेपर फॉर्म, मॉइस्चर फॉर्म, देयर वाटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इन आवर एनवायरमेंट, इट रिएक्ट विद आयरन and makes iron oxide means ferrous oxide और we called it rust, iron rust। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए we colored any iron equipment, any iron, जो भी आयरन का बना है इक्विपमेंट, उपकरण, जो भी हमारे सामने का उधर गेट होती है और रेलिंग होती है बिल्डिंग की, उसके ऊपर कलर्ड करती है। क्यों करती है कलर्ड? मीन्स एक कलर्ड लेयर, कलर्ड की लेयर आ जाती है उस आयरन के ऊपर, और वो जो वाटर की मॉइस्चर होती है, वाटर होती है, उसे रिएक्ट नहीं करने देती है, जिससे आयरन है वो रस्ट होने से हम बचा सकते हैं। एक अनदर प्रोसेस फॉर रस्टिंग से बचने के लिए एक अनदर प्रोसेस है, वी कॉल्ड इट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक, एक लेयर की जिंक की एक लेयर है ऑन आयरन के ऊपर चढ़ा देती है। ए प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड galvanization. It's called galvanization. Remember it. What do you mean by galvanization? Galvanization means जिंक की लेयर है, जिंक की लेयर है वो डिपोजिटेड ऑन आयरन, आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देती है। जिससे होगा क्या? इस मीन्स आयरन कैनॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ी होती है। इट मीन्स आयरन का रस्टिंग है वो नहीं होगा। इससे बचने के लिए इस प्रकार से प्रोसेस को भी कॉल्ड इट galvanization, we called it galvanization. So dear students, in this chapter you learn different types of chemical changes and different types of physical changes. Physical changes is reversible changes, but chemical changes cannot be reversible changes. In physical changes cannot found new substance, but in chemical changes we found new substances. Okay dear students, and from this chapter crystallization is next chapter, but crystallization removed from your syllabus. crystallization को आपको syllabus के अंदर से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए we cannot discuss about crystallization. Okay, and today is our 6th chapter completed, and next class we discuss about our next chapter. So dear students, you write your exercise question in your notebook. आप अपनी नोटबुक के अंदर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उस सभी टाइप से ऑल टाइप एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, गुड बाय।